Good morning, my dear students. This is Pawan Srivastava, and today we are going to discuss the next part of direct and indirect. Some students were asking that, sir, we have already studied about the topic, so they can just create notes. Otherwise, if they want to study about the topic anymore, so they can study. Otherwise, make notes and then school will reopen. So I will check the notes. Okay, guys. So next, my dear, so we are going to move direct and indirect. Point number 2. From point number 2, we are going to discuss. Point number 1, we have discussed. He said to me, comma inverted comma. You have done it. तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, आप ना यहाँ पर देख सकते हैं कि he said to me, you have done it. We have already discussed point number 1. Done? Yes. Point number 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Point number 2, SON table. SON table. SON table means 1, 2, 3. What is the meaning of 1? 1 means first person, 2 means second person, 3 means third person. First person, second person, third person. Already discussed I, me, mine. Subject, object and possessor. All the words I am going to write we, us, our. This is also first person. भाई ये भी फर्स्ट पर्सन होता है, ये बात आप सभी ध्यान रखेंगे. We, us, our. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. दोबारा लिखने से यहां पर थोड़ा सा जो है डिफरेंट है माय डियर बच्चों, थोड़ा सा जो है मतलब अलग है सिस्टम. you and your, he, she, it or they. Right? You can see very easily. He, she, it, they. What is the object of he? Him. She, her, its or that. His, her, its or their. नाउ माय डियर बच्चों, अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझना होगा कि मैंने ये टेबल जो है दोबारा क्यों बनाई है. Why I prepared the table again. आपको ये बात बड़े अच्छे से याद रखनी. यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे. You are seeing one thing. I, me, my, we, us, our. ये मैंने लिखा हुआ है माय डियर बच्चों. He or me. What is he? He is my dear bachcho here subject. Getting? And what is me? What is me here? Me is object here. Done? Subject and object. Now I am to going circle some words, and then only those words I am circling my dear बच्चों, those will be changed. वो बदलेंगे, इसलिए मैं उनको सर्किल कर रहा हूं. Just as I, me or my, you and your. So you can see that my dear bachcho, whatever what words I am circling, all will change according to the point. अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखें. जिन बच्चों को सीखना है
वो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेंगे भी, सुनने के साथ साथ। आई, मी एंड माई, जिस रैंक का वर्ड हटता है उसी रैंक का वर्ड लगाना पड़ता है। मतलब इफ वी आर चेंजिंग सब्जेक्ट, so we will put subject there, and if we are changing object, it means we will put their object, and if we are changing possessive, so we will put their possessive. It means any kind of word we are changing according to the rank, we will put the same word there. Okay, just as look at the board, my dear children, look at the board. I will change according to the subject. What subject? Subject will be here. मतलब मेरे बच्चों ये ना, ये जो यहाँ पर ये सब्जेक्ट रखा हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज करोगे। आई, मी, माई, फर्स्ट पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है। कौन सा सब्जेक्ट है? ये वाला सब्जेक्ट। इट मींस कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आने वाले दो पार्ट जो हमारे बचे हुए हैं, ये इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ब राइट नाउ। वर्ब की बात हमें नहीं करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो भाई यहाँ पर आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी सब्जेक्ट होगा, इट डजंट मैटर कि यहाँ पर ही रखा हुआ है कि सर यहाँ पर कोई नेम आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा भाई। क्या सर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट आ जाए? बिल्कुल हो सकता है भाई। तो आप जो चेंज करेंगे वो ये देखकर करेंगे कि भाई जो आई, मी, माई, ये तीनों में से कोई भी वर्ड आया हुआ है, आई आया तो भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी आया तो भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और माई आया है तो भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई मैंने ऐसा जो है पिक्चर बना दी इसकी, बोलो कि आप इन तीनों वर्ड्स को आई, मी, माई को अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट चेंज। अब क्या होता है हमारे बच्चों? अब आते हैं सेकंड पर्सन पर। ये भी तो सर्किल किए रखे हैं, सर्किल कर रखे हैं, तो इसका मतलब है कि ये चेंज होंगे। किसके अकॉर्डिंग होंगे? किसके नीचे लिखे? सेकंड पर्सन के। तो सेकंड पर्सन हो गया। किसके नीचे लिखा? ऑब्जेक्ट के नीचे लिखा। कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई? ये वाला। टॉकिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्ट। इट मींस यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। व्हाई डजंट मैटर? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सर यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा रखा होगा। ऑब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है। अभी के लिए यहाँ पर मी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? मी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है। ये जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं ना, आपको ये सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चेंज किसके अकॉर्डिंग करोगे भाई? इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बच्चों थोड़ा सा समझिए, ठीक है? ये तीनों के तीनों भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। एक बार फिर से जो आपको याद दिला देता हूं, आई, मी, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है भाई? सब्जेक्ट के। कौन से? ये वाला सब्जेक्ट। यू, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है भाई? इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन से वाला ऑब्जेक्ट है भाई? ये वाला। पार्ट अलग हुए। एक और माइनर सा चेंज होता है माय डियर बच्चों, ऑलरेडी आई टोल्ड दैट कि ये मैंने सर्किल नहीं किए, मतलब कि ये बदलेंगे ही नहीं। अगर ये आपके इनसाइड सेंटेंस के अंदर आ जाए तो ये बदलेंगे ही नहीं। बदलेंगे तो बाहर वाले में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। ये तो सिर्फ इनसाइड सेंटेंस के रूल्स है, ये बदलेंगे नहीं। जो सर्किल हो रखे हैं वो बदलेंगे। इसके अलावा आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, वी, अस और आवर। ये डायरेक्ट चेंज होते हैं। वी आपका डायरेक्टली चेंज हो जाएगा दे में। लो मैंने सर्किल कर दिया अंडर द बॉक्स, मैंने रख दिया, चेंज हो गया। इट मींस कि इनसाइड सेंटेंस में कहीं पर भी वी आ गया ना, आपको किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप दे में लगा दीजिए। अस आया हुआ है तो आप इसको देयर में चेंज कीजिए। अवर आया हुआ है तो आप देयर में चेंज कीजिए। एंड इफ यू आर नॉट जस्ट एबल टू वॉचिंग द स्पेलिंग, सो यू कैन जस्ट सी हियर। सेम है दे, देन और देयर, ये सेम। डायरेक्टली इसको चेंज कर देंगे आप। वी को दे में चेंज कर देंगे, अस को देयर में चेंज कर देंगे, और आवर को देयर में चेंज कर देंगे। एक बार बड़े ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, और अपनी नोटबुक पर बिल्कुल यू का यू जो है लिख लीजिए। ये देखा जाएगा और आपसे जो है पूछा भी जाएगा ये हो क्या रहा है।
ठीक है मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें भी आपको जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई स्क्रीनशॉट से आपके समझ आ रहा है। अब इससे आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। अब ये पॉइंट नंबर 3 क्या होता है? यस यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड मेरे बच्चों, मैं आपको फिर समझाता हूं। पॉइंट नंबर 3 क्या होता है? पॉइंट नंबर 3 को मैं कहता हूं मेरे बच्चों आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस। इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? भाई मैं थोड़ा सा जो है, अगर आपने लिख लिया है तो मैं बोर्ड को थोड़ा फिर से चलिए भाई आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस यानी कि पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो मैंने एक चार्ट बनाया, अगर आप इस चार्ट को बड़े अच्छे से समझ पाए तो आज आप अपनी जो है मतलब स्टडी लाइफ में, एक स्टूडेंट लाइफ में जो आप ये सीखेंगे कि सेंटेंस को पहचानना कैसे। एक क्वेश्चन है कि भाई कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी स्टडी। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं माय डियर बच्चों, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल टेबल को ऐसे ही बनाए जिससे आपको इन फ्यूचर वो टेबल याद भी रहे। बिल्कुल ऐसे ही टेबल को बनाए माय, इस बात को भी ध्यान रखें और कोशिश यही करें कि हर चीज को नोट किया जाए और हर चीज आपकी समझ में आए। सबसे पहला सेंटेंस होता है आपका असर्टिव। स्पेलिंग्स के लिए बुक्स देख ले भाई, स्पेलिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। असर्टिव, असर्टिव के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं। तो नंबर 1 अफर्मेटिव और नंबर 2 नेगेटिव। दूसरा सेंटेंस है हमारे बच्चों इंटररोगेटिव। थर्ड पार्ट है इंपेरेटिव। फोर्थ पार्ट हो जाता है हमारे बच्चों एक्सक्लेमेटिव। और फिफ्थ पार्ट है आपका ऑप्टेटिव। ये जो 5th नंबर पर लिखा हुआ है ये भी एक डिफरेंट सेंटेंस होता है। कभी आप ये सोचे सर हमने तो 4 ही सुने हैं, 5 कहां से आया? भाई डिफरेंट सेंटेंस होता है, इसके रूल्स अलग होते हैं। लेकिन मैं आपको जो बताने वाले रूल्स है, मैं ये वाले रूल्स तो नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। 1 2 और 3 ये 3 आपके सिलेबस के अंदर आते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट, क्वेश्चन और कमांड। ये तीनों आते हैं। आसरेटिव अब सेंटेंस को देखकर पहचानना आपको कि सेंटेंस देखने से पता लग जाएगा। एक नॉर्मली सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलता है, उसके बाद हो सकता है हेल्पिंग वर्ब मिले, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के भी चलते हैं। उसके बाद आएगा आपकी वर्ब और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यहां तक सेंटेंस होता है, लेकिन उसके बाद में अगर फुल स्टॉप लगा मिल जाए तो तब आप इस सेंटेंस को कहते हो कि लो भाई ये सेंटेंस हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। कब कहोगे सेंटेंस असर्टिव होता है? जब आपने देखा एक सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप, बीच को भी देखने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाए, बाद में फुल स्टॉप आ जाए, सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव। अब आप कहेंगे सर सेंटेंस बेटे बाकी के जो 2 है ना, 1 2 3 जो बचे हुए हैं उनसे जो है पता लग जाएगा। चलो ये मान के चलते हैं भाई मुझे ये सेंटेंस को देखना नहीं आता, पहचानना नहीं आता कि कैसे सेंटेंस पहचानूं असर्टिव है। इंट्रोगेटिव पहचानना बड़ा मुश्किल।